Jai Guruji, Shukrana Guruji. No wonder why I am picked today. Literally few days back, I was talking with my husband Vikas that, it's our anniversary month with Guruji. I fondly remember it was 2011 Christmas Day when we got an invite for Guruji's satsang. And who knew at that time that it's going to be a turning point in our life. So thank you so much, Guruji. And so a few days back, my husband was asked to do a satsang at someone's home. And today Manish asked me today, even though I'm little hesitant in public speaking, but I have so many blessings from Guruji, so definitely I willingly accepted that. And all the satsangs are surely special, जो भी बोलते हैं, दिल से बोलते हैं. So I'm sure Guruji बुलवाएंगे, because I wasn't prepared for it at all. Definitely, 2011 Christmas Day, we were quite new to this country. And I always quote that phrase because at that time, even though it was a holiday time, but the vibe, the cheer wasn't there at all in our home because we were like confused whether we made a good decision of moving to this country. But right after that, when we got connected to Guruji, this country started feeling like home, literally home. Since then, we are celebrating all our Indian festivals, American festivals, all with Guruji. कभी परिवार की कोई कमी ही नहीं लगती, कोई भी त्योहार हो आपको लगता है कि आप इतने तो इंडिया में भी नहीं थे जिनके साथ आप सेलिब्रेट करते थे. तो थैंक यू सो मच गुरुजी अपने दरबार में बुलाने के लिए, इतने प्यारे परिवार से मिलवाने के लिए. थैंक यू सो मच. So there is so much of joy, love, and gratitude in our life now, definitely. So now it's been 12 years now. My son was like 5-6 years old at that time, and now he's turning 17. So I surely feel, the kind of compassionate and good kid he is. So Guruji played a very important role in shaping him up. मुझे हमेशा लगता है, कि हम जो संस्कार की बात करते हैं इंडिया में, अपने मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, इस कंट्री में कैसे हम अपने बच्चों को दे पाएँ. आई एम श्योर हम यहाँ आते हैं, इतने अच्छे सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हमारे साथ आते हैं, आई एम श्योर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर भी पड़ता है. तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट. गुरुजी के पास आना शुरू किया बहुत बार. इनफैक्ट हर बार ये सुनते थे, गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो. तब लगता था कि क्या ये इवन पॉसिबल भी है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि शायद गुरुजी इतना दे देते हैं कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. लिटरली इवन इफ आई फील कि कभी कुछ मांगा है तो आई वुड से नो. रीज़न इज़ नॉट कि मुझे बहुत समझ आ गई है, रीज़न इसकी गुरुजी ने इतना दिया है कि कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. Other thing I would say is कि as a child I heard one thing, from Osho's book. What my dad was reading this book once, and he said कि उसमें एक line थी कि spirituality is a rich man's thing. And at that time, this thing didn't make any sense to me. मुझे लगता है जो गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनको तो ज़्यादा भगवान की ज़रूरत होती है. तो जब गुरुजी के पास आई तो वो मेरा आंसर इतने टाइम बाद, ही मेरा अपना एनालिसिस है, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इज़ दैट, कि गुरुजी के पास जब आते हैं बोलते हैं गुरुजी आपकी सबसे पहले हेल्थ क्योर करते हैं, देन फाइनेंशियल हेल्थ क्योर करते हैं, देन योर रिलेशनशिप्स. सो ही मेक श्योर दैट you are very stable in your own thing, right? You are very happy. You don't have to worry about your financial health, your physical health, your relationships. So now you are in a state where you are ready to go to next level, where you can have some seeking in your life. You can think about what's the purpose of your life. Because जब तक पेट भूखा हो और आप भगवान की बात करो तो शायद ये समझ में नहीं आती. So we all are so fortunate कि गुरुजी ने already हमारी सब चीज़ों का तो ध्यान रख ही लिया है. तो अब शायद there is a time we should, evolve as a good human being. The other thing I would say कि initially जब गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो there are different phases. Initially लोगों से सुनते थे कि स्काई में ओम बन जाता है, तो हम लोग भी देखना शुरू कर दिया, रोटी पे ओम, दिस एंड दैट. बट दीज आर डिफरेंट स्टेजेस. धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि गुरुजी तो हर जगह है, और गुरुजी से प्यार करना ही काफ़ी नहीं है. शायद गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन जस्ट सेइंग कि
वी जस्ट लव गुरुजी, लव गुरुजी, लव गुरुजी। गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं, कैसा आचरण वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Whether we are in mandir, we are outside mandir, we are in any party, I would feel कि हम गुरुजी वाले जहाँ भी जाएं हमारे से एक ऐसी महक आए कि कहो ये तो गुरुजी वाले हैं। हमारा आचरण जैसा हमारा मंदिर में है वैसा ही कोई हमें पार्टी में मिले, it should have been the same thing. So शुक्राना महाराज। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई वुड से इसकी आज गुरुजी के दरबार में 12 साल हो गए हैं कि गुरुजी ने ऑफ कोर्स इसका मतलब कि लाइफ की सिचुएशन इतनी फेवरेबल बनाई हुई है कि हम ईयर आफ्टर ईयर, आई वुड से मंथ आफ्टर मंथ, वीक आफ्टर वीक, समटाइम्स मल्टीपल टाइम्स इन वीक आ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अब तक हाथ थामा है, आगे भी हमेशा थामे रखना, बहुत बहुत शुक्राना। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स गुरुजी ने इतना दिया है तो बहुत शुक्राना उसका। बट एक बहुत इमोशनल सत्संग है जो मैंने सोचा मैं नहीं शेयर करूँगी, बट शायद गुरुजी ने दिमाग में बोला ये मैं बोलूँ। यमराज ना आए नेड़े जब ये लास्ट शब्द चला, तो लास्ट ईयर इन I'll not cry this time. So it was May 13th, it was a regular day, and my husband got a brain stroke. And जो भी मेरे husband को जानते हैं, I've never seen anybody as disciplined as him, even before that. So it was a sudden shock, कि ये कैसे हो गया, ये क्या. But today he's all fine. तो मैं यही सोच रही थी कि अगर कुछ होता तो हमारी क्या औकात थी, क्या हमारा जोर था, हम उसको कंट्रोल कर पाते. तो इट्स लाइक इट्स गुरुजी's मर्सी कि आज हमारा परिवार खुशहाल है. आई एम स्टैंडिंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अपनी बख्शीश, अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बना के रखना गुरुजी, हमेशा हाथ थामे रखना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. जय गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना.